So demultiplexer performs the reverse operation on multiplexer. I have already told you that. And what does it mean by reverse operation? Basically means that it receives one input and distributes it over several outputs. So if you appreciate the idea of multiplexer, you will not have problems in understanding the multiplexer. Although they do reverse work, but their idea, their concepts are familiar to us because we already know what is the multiplexer. So it has the difference between multiplexer and demultiplexer is basically that it has demultiplexer has only one input and n number of outputs and m selected. So here again we have three things: input, output, and select input. Select inputs are those which are the deciding factor that what will be going in output. So that select input plays a major role, and number of select inputs required it depends upon how many inputs are outputs we are looking for. Like in multiplexer, we look for number of inputs. In demultiplexer, we look for number of outputs. So demultiplexer has one input and it distributes data to different channels. Kind of, we can say. So at a time, only one output line is selected by the select lines and input transmitted to the selected output. So like I told in multiplexer, क्या करते हैं हम लोग कि मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है एक कई सारे इनपुट होते हैं और हम डेटा सेलेक्टर उसको कहते हैं और जो सेलेक्ट लाइन है उसके हेल्प से हम लोग कुछ ऐसा लॉजिक बनाते हैं कि आउटपुट में वो वाला डेटा जाता है जो हमको चाहिए होता है। मतलब इनपुट में हमारे पास 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है, so I have to make an demultiplexer and then select कि हमको कौन सा इनपुट आउटपुट में ले जाना है। ये मल्टीप्लेक्सर करता है। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, एक हमारे पास इनपुट है, आउटपुट में बहुत सारे रास्ते हैं, तो इट सेलेक्ट कि कौन से आउटपुट में इस डेटा को देना है। और एक चीज इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने कल तुम लोग को बताया था कि मल्टीप्लेक्सर 2x1, 4x1, 8x1, 16x8, 1 ऐसे होता है। डीमल्टीप्लेक्सर 1x2, 1x4, 1x8, 1x16। तो जैसे अगर हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस हो, तो हम मल्टीप्लेक्सर यूज करना चाहें तो क्या हम लोग यूज नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, हम लोग यूज कर सकते हैं। बट जो मल्टीप्लेक्सर होते हैं उसका इनपुट 2 to the power में होता है। तो इफ यू हैव 3 इनपुट्स, so you have to put 1 input you don't care about, because you don't have 4 inputs, so you can put 3. So 4 into 1 multiplexer will be okay if you have 3 things to 3 data lines to select for a single line. मतलब ये कि उसमें 4 का ऑप्शन है हमारे पास, हम 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर से काम चला सकते हैं। अगर हमारे पास 5 डिफरेंट डेटा सेट्स होते तो हमको 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर में जाना पड़ता, क्योंकि हमारे पास 4 into 1 है, फिर 8 into 1 है, बीच में ऐसे कोई भी नंबर नहीं है। लेकिन कोई और नंबर हो तो ऐसा नहीं कि हम उसको यूज नहीं। तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, because you don't have a multiplexer to test. Actually होना क्या चाहिए कि it should be site like you must be able to do some experiments as well in this course. When we are teaching, when we are learning different things, we must have some experimental session where we can show what is the multiplexer by designing experiment. But you see, things can be made much better, but it needs a lot of effort. It needs a lot of things to do. Since I can't have an laboratory here at my place, but I sincerely think sometimes that designing some small, like if you look at physics classes, so there are many people who use different models to explain things.
So at this place also, it will be really helpful if we can do something of that sort. So I will try to put some demonstration type of thing in this unit tutorial. Like when we do tutorial in previous class, what we did, we solved algebraic problem. So that was an algebra in that unit, but in this unit we have circuits. So I will look forward to engage with you with some demonstration, some simulations, so that we can see how a multiplexer works, how a demultiplexer works, how encoder works, how encoder works. So I will use some simulation, some short videos to discuss this in our tutorial. So tutorials will be interesting in this unit. So I request you all to be there. Okay, so let us proceed further. The demultiplexer, the third point I'm reading, the demultiplexer takes one single input data line and then switches it to one of the number of individual output lines at a time. The multiplexer converts a serial data signal into at the input to a parallel data at its output line as shown. ये चीज थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाकी चीजें हम लोग पहले से बात कर चुके हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, सीरियल डेटा सिग्नल जो इनपुट में है उसको पैरेलल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट कर देता है ये थोड़ा हम लोग देखेंगे कि सीरियल डेटा क्या है और पैरेलल डेटा क्या है। डेटा प्रोसेसिंग में सब चीजें बहुत मायने रखता है। जस्ट यू थिंक अबाउट लाइक वी हैव टू ट्रांसफर सम बिग फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमारे लेवल का चीज नहीं है यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जस्ट ट्राई टू थिंक कि कितनी जो डेटा ट्रांसफर होता है उसमें ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे ट्रांसफर होता है। जैसे तुम देखोगे ऐसे नए नए डिवाइसेस आ गए जिसमें डेटा प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफर स्पीड ज़्यादा है। तो हाउ दिस स्पीड इम्प्रूव, इफ यू थिंक अबाउट इट देन यू विल कम टू नो दिस पैरेलल and serial data processing and all. So this is interesting thing. अभी हम लोग धीरे धीरे इसको और बेटर तरीके से समझेंगे। So the demultiplexer is equivalent to single pole multiple base switch. ये बोले ये स्विच की तरह होता है। मल्टीप्लेक्सर जब पढ़ रहे थे तभी भी हम लोग ये बोले थे स्विच की तरह होता है, लेकिन ये स्विच हमारे जैसे घरों में जो स्विच लगे ऑन ऑफ उससे थोड़ा सा कम एक अलग तरह का स्विच है। जिन्होंने एक वर्ड यूज किया सिंगल पोल मल्टीपल बेस, मतलब एक खंभे से जब बहुत सारे कनेक्शन दिए जा रहे हो तो उस तरह का सिचुएशन है। एंड देयर यू कैन सेलेक्ट कि कहाँ पे इनपुट जो है वो आउटपुट में किस जगह जाना है। यू कैन पुट एवरीवेयर, यू हैव टू सेलेक्ट 1 2 3 जिसमें भी जाना है। दैट वे यू कैन विजुअलाइज। So let's look at how it works, how it looks like. ये इसका ब्लॉक डायग्राम, जैसे हम लोगों ने पहले ब्लॉक डायग्राम तो ब्लॉक डायग्राम में क्या है, डब्बे में क्या है हमको अभी पता नहीं, लेकिन क्या हो रहा है ये पता है। तो जैसे मैं पहले भी बताया कि इस तरह के मल्टीप्लेक्स के वेरिएशंस हो सकते हैं, 1 into 2, 1 into 4, 1 into 16, 1 into 32, that kind of। So, और एक चीज उन्होंने लिखा है unlike multiplexers which convert data from a single data line to multiple lines and demultiplexer which converts multiple lines to single data line. We have already discussed this. This is not. So here you see this is an example of 1 into 2 demultiplexer. So this is the data line, D is the data line. And y1, y2 are the outputs. So one data line to two outputs. So that is why it is called 1 into 2 demultiplexer. E जो लिखा है इसको enable कहते हैं and either you say select line. Select line जब होता है, अगर इसको enable इसमें क्यों कह रहे हैं,
इसमें सेलेक्ट लाइन क्यों नहीं कह रहे, उसका रीजन ऐसे समझ सकते हो कि पहले क्या था, मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारे इनपुट होते थे और उसमें से हम लोग एक को सेलेक्ट करते थे, इसको डेटा सेलेक्टर कहते थे, तो सेलेक्ट लाइन वहाँ पे कहना अच्छा था। यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये बेसिकली एक तरह से इनेबल करता है कि ये वाला लाइन इसमें जाएगा, इसमें जो डेटा आ रहा है वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इनेबल। बट you say you can understand that both things, the select line and enable has some similar role. यही डिसाइडिंग फैक्टर्स है कि जो डिसाइड करते हैं कि हमारा मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर डेटा को कैसे प्रोसेस करता है। सो दैट्स व्हाई दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दिस इज लाइक ए कंट्रोल की, इसी से हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं। एंड वन थिंग यू सी हियर अगेन एक्स, एक इन्होंने ट्रुथ टेबल बनाया है, तो 1 into 2 डीमल्टीप्लेक्सर के लिए। तो यहाँ पे ई है इनेबल, ये 0 1 कुछ भी हो सकता है, और ये सेलेक्ट मतलब ये जो डेटा है, जैसे कहे कि यस यहाँ पे लिखा है, उसे लाइक इसका वैल्यू कितना है ऐसे कह सकते। तो ये आउटपुट में है। आउटपुट में अगर देखिए इनेबल का वैल्यू से पूरा 0 है। इनेबल जब हमने बंद करके रखा, मतलब 0 मीन्स इनेबल इज ऑफ, देन व्हाटएवर यू डू आउटपुट विल बी 0 0 ऑल द केसेस। So whatever you do it in select doesn't matter. So this is why X is this, don't get confused. When enable is on, then in select line you can put 0, then this goes to Y1, data goes to Y1. When you put it 1, it goes to 0. मतलब हम यहाँ जो सेलेक्ट लाइन है उसकी हेल्प से ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो इनपुट डेटा लाइन है वो इसमें आएगा कि इसमें आएगा। ये ट्रुथ टेबल इस तरह से दिखाते हैं। अब हम लोग इसको बेसिकली ट्रुथ टेबल नहीं कहेंगे, कुछ और सब है इसके लिए, वी विल इवेंचुअली डिस्कस इट, बट धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, बेसिकली और थोड़ा डीप में जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिस ब्लॉक डायग्राम इज मोर इलस्ट्रेटिव, ये थोड़ा ज़्यादा चीज़ें बताता है। ये बताता है कि इनपुट एक है और आउटपुट 2 to the power n आउटपुट है, तो सेलेक्ट लाइन कितनी चाहिए, n चाहिए। इफ यू रिमेंबर व्हेन वी डिस्कस मल्टीप्लेक्सर, तो यू कैन जस्ट इसको फ्लिप कर दो, इसको उल्टा कर दो, ये आउटपुट की जगह इनपुट कर दो और इनपुट की जगह आउटपुट कर दो, और ये 2 to the power n हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के उल्टा है, ये यहाँ से समझ सकते हैं। एंड द कंसेप्ट इज सेम। अगर 2 to the power n आउटपुट में हमको चाहिए तो हमको n सेलेक्ट लाइन चाहिए। मतलब अगर हमको 2 आउटपुट चाहिए तो 1 सेलेक्ट लाइन, 4 आउटपुट चाहिए तो 2 सेलेक्ट लाइन, 8 आउटपुट चाहिए तो 3 सेलेक्ट लाइन। ऐसा हम लोग जानते ही। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस डब्बे के अंदर क्या है इसको हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। अभी तक हम लोग डब्बे के बाहर देख रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज इनसाइड। तो हम लोग सबसे इजी एग्जांपल लेंगे 2 into 1 का। इससे इजी डीमल्टीप्लेक्सर 1 into 2 डीमल्टीप्लेक्सर, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग एंड लेट अस सी हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज द block diagram, this is the logic diagram, and this is the truth table. So logic diagram सबसे पहले देखते हैं, और तो चीजें हमको पता है, इसको तो हम लोग जानते हैं। इनपुट एक ही है, यही सब जगह है, और सेलेक्ट लाइन ये भी एक ही है, क्योंकि 2 आउटपुट चाहिए, 1 into 2 है तो सेलेक्ट लाइन हमको एक ही चाहिए। 2 तरह के गेट इसमें यूज हुए, एक तो एंड गेट, एक नॉट गेट। इनपुट में हम लोग जो भी दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, आउटपुट में हमको 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। यहाँ पे हम लोग 0 1 दे सकते हैं। तो ये अच्छा चीज ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, 0 1 के अलावा और कुछ देना नहीं है। जितने भी इनपुट है आउटपुट है 0 1 ही आएगा, लेकिन उसका लॉजिक है
तो अब देखो क्या होता है इसमें। पहला वाला केस, ये वाला केस करते हैं। लेट अस सी दिस सेकंड केस। सेलेक्ट लाइन 0 है, मतलब यहाँ पे हमने 0 दिया, इनपुट में हमने 1 दिया। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये एंड है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 था, ये नॉट गेट है, तो ये 1 आया है यहाँ पे, और ये 1 आया। 1 और 1 दोनों है, आउटपुट में ये एंड गेट है, 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। सो आउटपुट 1 विल बी ऑन, विल बी 1। लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू आउटपुट 2। हियर yes is 0 and this is 1। तो एक जगह पे हमको यहाँ पे 0 दे रहे हैं, एक जगह 1 दे रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी ऑफ। So in this situation, output this one is on, this one is off। एक on है, एक off है। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरे कंडीशन देखेंगे, तो जब हम लोग यहाँ पे 1 देंगे तो दूसरा वाला on। बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम लोग इधर तो कुछ कर नहीं रहे, इधर चाहे 0 दो चाहे 1, ये हमको जो चाहिए ये यहाँ पे चाहिए, कभी हमको ये यहाँ पे चाहिए। हमको इसके बारे में, इसमें क्या दे रहे हैं, इट इज नॉट मच ऑफ आवर कंसर्न, बट आवर कंट्रोल लाइज हियर। हम लोग यहाँ पे 0 देंगे तो एक में जो ये इनपुट है वो एक इसमें दिखेगा, और जब हम 1 देंगे तो इसमें दिखेगा। ऐसे मतलब होगा, इसका लॉजिक ये है। इस लॉजिक को समझ लिया तो डब्बे के अंदर क्या है, वी ऑलरेडी नो दैट। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर में लॉजिक क्या है, कुछ भी नया नहीं है, वही गेट है, एंड गेट और गेट नॉट गेट, और उन्हीं के हेल्प से हम लोग एक ऐसा सिस्टम सेट कर रहे हैं जिसमें इनपुट की लाइन को हम लोग कई सारे आउटपुट के चैनल में डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें जाएगा कि उसमें जाएगा कि उसमें जाएगा। वेरी सिंपल। बट जैसे पहले क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग मैनुअली करते हैं, तो मैनुअली करना, एक दो आउटपुट में करना हो तो कर सकते हैं। जैसे ही सिस्टम बड़ा होता जाएगा ऐसे ही हमको एक मैकेनिज्म चाहिए होगा। और जो ये लॉजिक है, ये सब चीजें ही ओरिजिन है जो आज की दुनिया बहुत एडवांस है। अभी चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। व्हेन वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा, ये सब चीज़ों पे जब तेजी से काम हो रहा है, और हमारा कम्युनिकेशन, हमारा टेक्नोलॉजी somehow is affecting us. So there are a lot of things happening, but you see things start, basics are very simple. Anything which looks very complicated, very difficult, very challenging, and if you go inside it, you will see there is simple structure, simple thing like it. बहुत बार हम लोग बहुत सारा चीज़ों को समझते हैं। इफ यू गो लाइक ऐसे लोग जो ज़्यादा कुछ साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं हुआ इनका, या जिनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है चीज़ों को समझने का, दे टेंड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। एक्चुअल रियलिटी इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। रियल वर्ल्ड इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बट उसको जब डीपली समझने का कोशिश करेंगे, यू विल फाइंड सम वेरी सिंपल लॉ वर्क, लाइक with the gravitational force, like we see there are many phenomena, there are many things which are very amazing, very beautiful, very disastrous. A lot of things you can see around, but if we go deep in understanding the cause, the reason, there lies some simple law. And we, the students of science, we, the learner who try to understand things, are basically looking forward for those laws. तो जैसे हम लोग ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, उनको देखने समझने का एक प्रोसेस है, एंड यू रियली अप्रिशिएट व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स। ये एक डीमल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर है। ऐसा हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं, उसमें ये सब सर्किट छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, बट हम लोग उन कंपोनेंट्स के बेसिस पे नहीं जानते। वी जस्ट यूज इट। आई डोंट से दैट वी नीड टू नो एवरीथिंग,
हम लोग सब कुछ नहीं जान सकते, हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है, हम लोग का जिंदगी छोटा है और दुनिया बहुत बड़ा है। But this is a continuous evolution. Everybody does its own part, and in that way, we make things better. We make things easy to understand. ऐसा हम लोग करते हैं। तो ये एक जनरल सा बात हो गया जो हम लोग सीखे थे, उसको मैं थोड़ा सा बड़े प्रोसेस में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर हम लोग बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं जिसमें यूज होता है और वो हम लोग उसको यूज करते हैं, उसका बेनिफिट उठाते हैं, बट हम लोग उसको जानते नहीं हैं। लेकिन अभी हमारे पास मौका मिला, हम लोगों ने सबको समझने की कोशिश किया, देन वी केम टू नो देयर इज वेरी सिंपल things which are making this decision, making this data transmission, data processing easy for us. हमको खुद से नहीं करना। So let's complicate it further. Let's look at 184 demultiplexer. ये कैसे दिखता है? Yeah. Now you see the same idea is there. This is I is the input. हम लोग के पास एक ही इनपुट होता है इसमें, तो एक ही इनपुट सब में जा रहा है। देन देखो जैसे ये जो कार्टून है इसमें एक प्रॉब्लम है। जनरली जब हम लोग ऐसे कार्टून ड्रा करते हैं, सर्किट ड्रा करते हैं, तो वी या तो हम लोग ये दिखाते हैं कि ये जो लाइन है ये इससे कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे जो ये दिख रहा है, दिस इज नॉट कनेक्टेड, ये 2D व्यू है, हम लोग ऐसे दिखा नहीं सकते। तो या तो ये करते हैं कि इसको हम लोग छोटा सा ऐसे करके बना लेते हैं, या हम लोग जहाँ पे कनेक्शन होता है उसको डॉट कर लेते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन नहीं है। तो जो लोग जानते नहीं होंगे, जो लोग को समझ नहीं है, उनको ऐसा लगेगा कि ये सारे तार जुड़े हुए हैं। So that is not a good thing. That is not a reality, you know. And if you just go back, you see here. यहाँ पे इन लोगों ने कैसे दिखाया कि ये तार नहीं जुड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा सा मोड़ दिया, और जहाँ पे तार जुड़ा है उसको डॉट बना दिया। तो दिस इज a common practice and good practice. You should be doing this. ये जो कार्टून जिसने भी बनाया है उसने थोड़ा सा ठीक नहीं किया है। ये कार्टून ये चीज और भी होता है कि हम जब बहुत सारा चीजें बनाते हैं, पीपल जिसने भी इसको बनाया होगा, ऐसा नहीं है कि उसको डॉट बनाने में, ये बनाने में बहुत मुश्किल होगा, किसी ने बनाया होगा। तो थोड़ा सा जब हम काम करते हैं, अगर हम अपने काम को थोड़ा सा बेटर तरीके से करें, तो वो चीजें ज्यादा कम्युनिकेटिंग हो जाती है। जैसे हम लोग तो कुछ नहीं है, जो लोग वर्कशॉप में काम करते हैं, जो लोग एक्सपेरिमेंट के लिए डिजाइन करते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, डिजाइनिंग बनाते हैं, तो दे मेक वेरी फाइन पार्ट ऑफ डिजाइन ऑन ए पेपर। उसको देख के कुछ बनाना होता है, तो अगर वो थोड़ा सा भी कुछ गलती करेंगे तो जो मेन डिजाइन है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें, जो ये पार्ट है, जो ये कार्टून बनाना है, ये भी एक तरह का जॉब है। और जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो अच्छा कम्युनिकेटिंग होना चाहिए, इट शुड बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड, देखने में अच्छा लगे और समझने में इजी हो, ऐसा होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज नॉट बैड, बट देयर इज एन डिफिकल्ट, देयर इज एन थोड़ा सा कमी है, उसको हम लोग बात किए। उसका बात करने का ये फायदा है कि हम उसको समझे। पहले तो ये कि गलती ना करें कि ये सब कनेक्टेड, ऐसा सोचे। दूसरा ये कि ये समझें कि इसको ये मतलब और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें अभी ये समझो, एक इनपुट है, ये सब जगह जा रहा है, और 4 आउटपुट है और 2 सेलेक्ट लाइन है। आउटपुट अगर 4 है तो हमको सेलेक्ट लाइन 2 चाहिए, तो सेलेक्ट लाइन ले लिया। और यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि देखो, इनपुट हमेशा आई, हम नहीं बोल रहे इनपुट, बोल रहे हमेशा ऑन है या ऑफ है, कुछ है। इनपुट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इनपुट तो बाहर से आ रहा है, हम बस सेलेक्ट कर रहे हैं डीमल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे सेलेक्ट लाइन में हम 4 कॉम्बिनेशन देंगे, 0 0 1 0 1 1 1 0। और ये कुछ ऐसे सेटिंग करेगा कि जब ये 0 0 रहेगा तो D0 में
D0 मतलब ये जो है Y0, Y1, Y2, Y3 लिखा है, सो इट इज बेसिकली D0 जो लिखा है यही Y और D मतलब डेटा कह रहा है, डेटा लाइन. So please just look at it as like it is written Y0, Y1, Y2, Y3. Either you see D0, D1. मतलब ये दोनों सेम है, इन दोनों को अलग अलग ना समझें. तो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए एक में जो इनपुट में हमारे आ रहा था वो हम लोग यहाँ पे ऐसा सेट करेंगे कि या तो ये यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, और ये हम लोग इसमें क्या दे रहे हैं एज सोन एज नॉट में उससे डिसाइड होगा. तो ये हो गया 1 into 4 डीमल्टीप्लेक्शन. इसमें भी ये एंड गेट और नॉट गेट लगा, और इसको भी हम लोग उससे बना सकते हैं. खाली नैंड गेट से बनाना हो उसको बना सकते हैं. हमने इसको दिखाया नहीं, ये जस्ट समझने का बात है कि अगर हम यूनिवर्सल गेट है तो बना ही सकते. ये और थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा अच्छा और कॉम्प्लिकेटेड या और बड़ा हो गया. इसमें क्या है, 8 आउटपुट है, 3 सेलेक्ट लाइन दिया, 1 डेटा लाइन दिया. यहाँ पे ये थोड़ा बेटर देखो, जैसे इन्होंने बताया कहाँ पे कनेक्शन है उसको डॉट से दिखाया. तो जैसे जैसे बड़े करते जाएंगे सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, और फिर वो मुझे इम्पोर्टेंट भी ज्यादा हो जाएगा. यहाँ पे क्या कर रहा है, एक डेटा लाइन को 8 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. तो यू हैव समथिंग टू डू, यू कैन गो एंड प्लग इट हियर देयर एंड लाइक दिस. तो एक छोटा सा मल्टीप्लेक्सर विल डू इट फॉर. ओके, सो आई विल इस सब के ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग होंगे मुझे ऐसा लगता है. आई विल ट्राई टू कनेक्ट थिंग्स टू रियल लाइफ एग्जांपल. कहाँ हमको मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर हमारे सिस्टम में दिखता है, कहाँ कहाँ हम लोग उसको देखते हैं, यूज करते हैं. ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे जरूर से इसके ट्यूटोरियल. तो ये है 1 into 8 डीमल्टीप्लेक्सर. लेट्स गो फर्दर. अब ये क्या है, ये जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर का एप्लीकेशन दिखाया था ऐसे ही डीमल्टीप्लेक्सर का एप्लीकेशन देखते हैं. ये है हमारा कंप्यूटर, और ये प्रिंटर लगा है, फैक्स मशीन लगा है, कलर इंकजेट प्रिंटर लगा है, पेन प्लॉटर लगा है, बहुत सारा चीज़ें हमारे इसके डिवाइसेस लगी है जो इससे सिग्नल लेके कुछ काम करते हैं. तो अब हम जब किसी को कुछ काम देते हैं तो हमको ये डिसाइड करना पड़ता है. बोलते हैं ना प्रिंटर सेलेक्ट करो, कौन सा प्रिंटर चाहिए. तो जब प्रिंटर सेलेक्ट करते हो वो बेसिकली हम लोग नहीं जानते क्या हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर तो ये नहीं जानता तुम ये प्रिंटर सेलेक्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो तो सब कुछ बाइनरी में समझता है. तो बेसिकली हम लोग सेलेक्ट लाइन के थ्रू ऐसा कंडीशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं जिससे कि जो इसका इनपुट है वो पर्टिकुलर किसी डिवाइस में है. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू रियली अप्रिशिएट कि डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है और कैसे करता है. तो अभी ये हमारे लिए सिर्फ डब्बा नहीं है. वी नो व्हाट इज इनसाइड दिस डब्बा. एक IIT चैन का एग्जाम जो होता है मास्टर्स एडमिशन के लिए, उसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं बात करने के लिए. तो तुम लोग जो लोग भी हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, जो लोग ये सब चीज़ें एग्जाम देख रहे हैं कैसे होता है क्या होता है, सो इट इज एन लाइक फॉर योर क्लास इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज फॉर यू गाइस ओनली. And so you should join, and if you have any question you can send to me now, and when we do the session, live session, it will be live streamed on YouTube. You can there will be a dedicated session where we will host interaction with the invited speakers. जो लोग बाहर से आ रहे हैं हमारे, they are from Bangalore. Alan Lobo is the expert. He will be talking about he will be giving some tips and how to prepare and what it is. I am sure it will be a fantastic show. So another guy is he is a researcher at IISc, and also he is working in team with him to train new students. He is also very good. And so हम लोग इसका फायदा उठाते हैं. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ योर क्लास spend one
Not, it will not be more than 2 hours. It is 1 hour 30 minutes. I haven't planned. थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा तो ठीक है। इसी सब के साथ तुम लोग थोड़ा सोचो और उसका शायद लास्ट डेट अप्लाई करने का 15 अक्टूबर, इसलिए हम लोग उसको 10 अक्टूबर कर रहे हैं कि कम से कम जो लोग उसको सुने हुए वो लोग एप्लीकेशन करें। और ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक पर्सनल स्टोरी मैं तुम लोग को बताना चाहूँ कि मैं जब बीएससी कर रहा था, आई वाज इन लखनऊ यूनिवर्सिटी, आई वाज डूइंग माय बीएससी फ्रॉम केकेसी। मेरा घर एक गांव में है सीतापुर में, वहाँ पे, वहाँ से मैं यहाँ आया और आई यूज्ड टू लिव इन सीतापुर रोड एंड गो टू कॉलेज इन चारबाग। But at that time, this computer, email, laptop, and things were not that easily available, and people generally don't get to know that these kind of exams are there. तो हम लोग के साथ क्या होता था, ज्यादातर बच्चे जो साथ में पढ़ते थे वो या तो बैंक का तैयारी करते थे या तो एसएससी का तैयारी करते थे। तो ज्यादा लोग नहीं थे जो हायर एजुकेशन का बात करते। कॉलेज का भी बहुत अच्छा हालत नहीं था एंड देयर आर पीपल हु कम टू स्टडी। मैं भी पहली पहली बार लखनऊ आया था, मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। बट वन फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी दैट देयर इज एन एग्जाम आईआईटी जैन, you can write this and you will get admission in very good institutes, etc. So ऐसा नहीं कि मैं बहुत I was very brilliant. I don't think that I was brilliant, but I just try to sincerely understand. I was sincere in my effort. So I asked to a friend कि कैसे फॉर्म भरते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर सेंटर गए, वहाँ पे जाके उसको फॉर्म भरना सीखा, फिर वो एग्जाम दिया। आई क्वालिफाइड इट, रैंक माई रैंक वॉज नॉट वेरी गुड बट आई क्वालिफाइड एट एग्जाम एंड देन आई केम टू नो कि क्या क्या चीज़ें होता है, कैसे कैसे होता है। Then I got admission in BHU, so I chose BHU because BHU doesn't need studying in BHU was not very costly at that time. IIT का फीस अभी काफी ज़्यादा बढ़ गया है, तो the people who are from lower middle class are जो लोग ऐसा बैकग्राउंड से है जो बहुत पैसे का एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। By chance I am from that background, so छोटा छोटा इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कभी कभी ऐसे लोग जो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर तुम गांव में रहते हो, बहुत सारे लोगों को देखते हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बस उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, बस उनको सही तरीके से बताया नहीं गया। सो इट इज एन एफर्ट, लाइक हम लोग इसको बंद कमरे में भी कर सकते थे, हम लोग इसको जैसे जूम क्लास कर रहे हैं ऐसे भी कर सकते थे, बट आई एम पुटिंग इट ऑन लाइव स्ट्रीमिंग सो दैट जो लोग, ऐसे लोग हैं जो नए लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास स्मार्टफोन है, बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ देख सकते हैं। मतलब इट इज कुछ बुरी चीजें हैं इस समय की, कुछ अच्छी चीजें। अच्छी चीजें ये है कि हम ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हैं। इफ यू डू ए साइंस लेक्चर, a person sitting in a village can see that, and earlier it was not possible. तो ये सारा चीजें चेंज हो रहा है, उसी चीज में हम लोग कुछ अच्छा करने का एफर्ट में ये एक सेशन कर रहे हैं। So those guys who are coming up for us, they are also doing it for students, and we are also doing it for students. So it is for people who need this information. We want to remove this information gap ना हो, लोग समय पे जान पाए, तो उसी एफर्ट है, उसी तरह का। तो यू कैन शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जो लोग के लिए रेलेवेंट है, जो आईआईटी जैम का एग्जाम, जैसे ऐसे भी दोस्त होंगे जो अलग अलग जगह पढ़ रहे होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो कुछ जानना चाहते होंगे, तो यू शेयर विद देम। वी कैन, सिंस वी आर डूइंग इट लाइव ऑन यूट्यूब, तो कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आई थिंक दिस इज अ गुड इनिशिएटिव एंड एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू हेल्प अदर्स। एंड दुनिया ऐसे ही होना चाहिए जहाँ पे हम एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे की चीज़ों को समझें, एंड जो नए लोग हैं उनको, जो पुराने लोग हैं उनको मदद करें, तभी हम आगे बढ़ सकते। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स। So this